تو اگر یہ کھلاڑی اس طرح سے ہمارے لیے کھیلتا ہے تو پھر پاکستان کو 1 ڈاؤن میں ایک اچھا پلیئر مل سکتا ہے جو کہ کسی بھی بولنگ کے اٹیک کو اچھے طریقے سے کھیل سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اہم چیز ہے وہ ہے ہمارے بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں سپن اٹیک کا خلا ہونا۔ دیکھیں آپ نے پورا PSL کھیلا، آپ ایک کوالٹی سپنر لانچ نہیں کر پائے جو آپ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم نے یہ کھلاڑی سامنے لائے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اعظم خان کی جگہ ریپلیس کس کو کریں گے؟ آپ کے پاس ریپلیسمنٹ ہی نبی ہے۔ تو ان لوگوں نے ہمیشہ بڑے بڑے کرکٹ کے دیوتاؤں کو، بڑے بڑے پلیئر کو پریشان کیا ہے، تو یہ اب بھی آپ کو پریشان کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ نے لاہور قلندر کا کپتان بنا کر اس بندے کو خراب کر دیا ہے، آپ نے اس بندے کے مائنڈ سیٹ کو ہی خراب کر دیا ہے، اس سے اس کی ایبیلٹی تک چھین لی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں ہوں کیا، میں نے کرنا کیا ہے کرنی پڑے گی آپ کو۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ورلڈ کپ سپن، تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا سلام۔ حاضرین محترم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اٹس مائی اوپینین۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن کا بٹن دبائیے، ہمیں سبسکرائب کیجیے اور آنے والے تمام وقتوں میں ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین محترم، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے چوتھے T20 انٹرنیشنل کی، جو کہ کل رات ہی کھیلا گیا ہے۔ ناظرین محترم، رات ہونے والے میچ جو کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا، وہ انگلینڈ نے تقریباً 4.5 اوور پہلے 60 وکٹوں سے جیت لیا، اور جو میچ کی پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ میچ انگلینڈ کے لیے ایک ون سائیڈڈ میچ تھا۔ انگلینڈ پوری میچ پر حاوی رہی اور پاکستان کہیں بھی میچ میں دکھائی نہیں دی۔ تقریباً پاکستان کی جو پہلے بیٹنگ تھی اس کے 15 اوورز کے بعد جب افتخار احمد اور عثمان خان آؤٹ ہوئے، اس کے بعد میچ دیکھنا تقریباً فضول لگ رہا تھا اور ٹائم ویسٹنگ لگ رہا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے دیکھنا تھا اور اس پہ اپنے رائے دینی تھی تو میچ دیکھنا پڑا۔ اور اگر اس موقع پر آپ اپنے بولر سے گلہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گلہ نہیں بنتا، کیونکہ جہاں 200 لوگ کرنا چاہیے، جہاں آپ کو 190 کرنا چاہیے، 210-20 کرنا چاہیے، وہاں اگر آپ 150-155 کریں گے تو آپ کے بولرز کے لیے ڈیفینڈ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس سے ایک چیز بہت زیادہ پریشان کن سامنے آتی ہے کہ آپ کا جو بولنگ کمبینیشن ہوتا ہے، جو لڑکے آپ کے فائٹر ہوتے ہیں اور جو جان لڑاتے ہیں، وہ بھی حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو بیمار پڑ جاتی ہے، کیونکہ اگلے جو بیٹرز ہوتے ہیں وہ بریو ہوتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کسی طرح کا پریشر نہیں ہوتا، تو چیزیں جو آپ کے لیے بہتر ہونی چاہیے تھیں وہ آپ کے لیے اور خراب ہو جاتی ہیں۔ اس میچ میں ہمیں کچھ پازیٹیو چیزیں جیتنے کو ملی، حالانکہ ہم میچ بری طرح سے ہار گئے، لیکن 2 سے 3 باتیں ہمیں بہت زیادہ پازیٹیو ملی۔ ایک سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو ہم پریشان تھے اور بہت زیادہ ٹائم سے پریشان تھے کہ ہمارا بیٹنگ کمبینیشن میں جو اپر آرڈر ہے، جو اوپنرز ہیں، وہ ہمیں خراب کر رہے ہیں، ہماری پارٹنرشپ نہیں ہو پا رہی، ہماری سٹرائک ریٹ نہیں بن پا رہا، تو یہ چیزیں ہمارے لیے مسئلہ کر رہی تھی پچھلے 8-10 میچز سے، تو آپ نے وہ چیز ختم کر دی۔ رضوان اور بابر نے واپس آ کر اور ایک اچھی سٹرائک ریٹ کے ساتھ 10 کی ایوریج سے جو سکور بنائے ہیں اور بغیر کسی وکٹ کے دینے کے بنائے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے۔ اس سے بہتر کوئی بھی ٹیم نہیں کر سکتی، اور اگر آپ اس طرح کرتے ہیں اور آگے آپ کی اچھی ٹیم ہے، آپ کا مڈل آرڈر اچھا ہے، تو آپ 180, 190 اور 200 پر آرام سے پہنچ پاتے ہیں، تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت اچھا سائن تھا۔ اور دوسری اچھی بات یہ تھی کہ جو عثمان خان آئے، اس طرح انہوں نے جس طرح کی بیٹنگ کی، تو ان کی بیٹنگ میں ایک ایبلٹی نظر آ رہی تھی، ان کو دیکھ کے لگ رہا تھا یہ کھلاڑی ایک اعتماد کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور انہوں نے جو بھی شاٹس کھیلی ہیں وہ کھڑے ہو کے کھیلی ہیں، پراپر شاٹس کھیلی ہیں جو کہ باؤنڈری سے باہر جا کے گری ہیں۔ تو اگر یہ کھلاڑی اس طرح سے ہمارے لیے کھیلتا ہے تو پھر پاکستان کو 1 ڈاؤن میں ایک اچھا پلیئر مل سکتا ہے جو کہ کسی بھی بولنگ کے اٹیک کو اچھے طریقے سے کھیل سکتا ہے۔ تو عثمان خان پر جو سوالات ہو رہے تھے اور اس کے بارے میں جو پریشان کن باتیں تھیں، اور پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے ایک پریشانی کا معاملہ بنا ہوا تھا، تو یہ سول آؤٹ ہو گیا اور اب ہم اس سے بہتر کی امید کر سکتے ہیں۔
अगर हम इस बात पे बात करें, इस चीज़ पे बात करें कि हम क्यों हारे, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं रह गई, क्योंकि आपने देखा कि मैच वन साइडेड था, हमारी बैटिंग कोलैप्स कर गई बैटिंग, तो मैच हारना ही हारना था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि जो अहम चीज़ है वो है हमारे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में स्पिन अटैक का खला होना। देखें, आपने पूरा PSL खेला, आप एक क्वालिटी स्पिनर लॉन्च नहीं कर पाए जो आप दुनिया को दिखा सकें कि हमने ये खिलाड़ी सामने लाए हैं। उसामा मीर अगर आपके लीडिंग विकेट टेकर थे तो उनके भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी नहीं थी जिसको देख के आप हैरान रह जाएं। न पीछली बॉलिंग और लोकल प्लेयर्स की विकेट से वो जो है ना लीडिंग विकेट टेकर बन गए। लेकिन वही चीज़ फिर सामने आई भाई, जब आपने एक अच्छा क्वालिटी स्पिनर इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया तो आपके नेट में नहीं है। जब आप नेट में एक अच्छी चीज नहीं कर पाते, एक अच्छी बॉलिंग को, एक अच्छे अटैक को आप फेस नहीं कर रहे, तो फिर आप मैदान में आके कहां से उसको खेलेंगे, कैसे आप उसको खेलेंगे। तो ये चीज जो सबसे पहले पाकिस्तान की बॉलिंग में खला बन रही है, अब वो पाकिस्तान की बैटिंग भी नजर आना शुरू हो गई है। तो इस चीज पे पाकिस्तान को काम करना होगा, इस बीमारी का हल आपको ढूंढना होगा, इसका इलाज आपको ढूंढना होगा। अदरवाइज छोटी छोटी टीमों से आप परेशान होते नजर आएंगे और आप पहले मरहले से भी आगे जाने के लिए बहुत मुश्किल से तगवत करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। और मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड कप स्पिन अटैक का है। स्पिन अटैक बहुत ज्यादा जरूरी है और तीन टीमें मेरी तरफ से लिख लें जो आपकी हर वर्ल्ड क्लास टीम को परेशान करती हुई दिखाई देगी। उसमें सबसे पहले नंबर पर इंडिया है, उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं और जो थर्ड स्पिनर होता है उनका वो रविंद्र जडेजा है, जो कि किसी भी तरह आपको परेशान कर सकता है। और उसमें एक वर्थ है, एक स्ट्रेंथ है, एक एबिलिटी है कि वो गेंदों को घुमा के आपकी विकेट्स ले सकता है, आपकी बैटिंग को कोलैप्स कर सकता है। इसी तरह आपके पास जो अफगानिस्तान की टीम है उसमें भी तीन वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं। नूर मोहम्मद को देख ले जो कि अभी भी नए आए हैं, लेकिन राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, मोहम्मद नबी है। तो इन लोगों ने हमेशा बड़े बड़े क्रिकेट के देवताओं को, बड़े बड़े प्लेयर को परेशान किया है, तो ये अब भी आपको परेशान करते हुए दिखाई देंगे। और तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम है, विराट आपने देखी। इसी तरह अगर ये लोग बॉलिंग करते रहे, ये पाकिस्तान की इशू नहीं है, आपकी हर टीम को ये परेशान कर सकते हैं और आपको नजर आएगा कि हर टीम इनके सामने बेबस होती दिखाई देगी। तो पाकिस्तान को इस स्पिन बैटिंग बॉलिंग का इलाज करना होगा, बैटिंग में भी फेस करना होगा अच्छे तरीके से, और जो हमारे स्पिनर्स हैं उनको भी इस पर प्रॉपर वर्क करना होगा। और अगर हम बात करें नाज़रीन आजम खान की, तो आप जो टीम लाए हैं, आप मुझे बता दें कि आजम खान की जगह रिप्लेस किसको करेंगे? आपके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, देखें, आपने मोहम्मद हारिस को नहीं डाला, मैं बार बार कहता रहा भाई मोहम्मद हारिस को डाले, लेकिन अगर आपके पास मोहम्मद हारिस होता तो आप एक खिलाड़ी को ड्रॉप करके टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से अब आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और उससे परेशानी की बात यह है कि शादाब खान भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं और उन्होंने जो है ना सेम टू सेम बैटिंग करनी होती है ऊपर नीचे। तो जब आपका एक खला बन रहा है बैटिंग में, तो उसको दूर करना आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन रहा है। अगर आपकी दो बैटिंग में ठीक नहीं चलते, इनका फॉर्म वापस नहीं आती, तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जैसे मैंने कहा है कि रिप्लेसमेंट भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है। और आखिरी बात के शाहीन आफरीदी सर, आपने लाहौर कलंदर का कप्तान बनाकर इस बंदे को खराब कर दिया है। आपने इस बंदे के माइंडसेट को ही खराब कर दिया है। इससे इसकी एबिलिटी तक छीन ली है, इसको पता ही नहीं है मैं हूँ क्या, मैंने करना क्या है। आपने इसको मुफ्त में जो है ना PSL से एक बेहतरीन ऑलराउंडर बना दिया है। ये दूसरे तीसरे नंबर पे आके टीम कॉम्बिनेशन को बिगाड़ के 2-4 छक्के लगा देते हैं और फिर लाहौर बिहार जाती है और PSL भी गुजर जाता है। लेकिन आपको समझना होगा ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, आप ऐसे ही आंखें बंद करके शॉट्स घुमाएंगे तो आपसे नहीं होगा, और न छक्का लगाना जरूरी होता है। आपसे तो नसीम शाह ने ज्यादा बेहतर बैटिंग की है,
तो ना शाहीन आफरीदी को कोई बंदा पकड़ के बिठाए और उसको समझाए भाई जान आप हमारे लिए एक बॉलर है और आपको पार्ट टाइम बैटिंग दी जाती है, अगर कभी कभार आपकी बारी आती है तो खुदारा आप जो है ना कोई शीन वाटसन या कोई और बड़ा खिलाड़ी बनने की कोशिश ना किया करें। आप सरबपी तुली बैटिंग करके वो ओवर गुजार के आ जाया करें ताकि हमें 10-20 रन मिल जाए। आप यूं आंखें बंद करके जो हिटिंग करते हैं उसमें तो हर मुतबा आपकी गेंद विकेट्स पे लगती है, हमें नहीं तो आपको कोई छक्का देखा नहीं है पिछले 5 से 10 मैचेस में, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा अहम है और जरूरी है। आखिर में 2 मुख्तसर बातें करेंगे आपसे कि सबसे पहली बात, आपने इस मैच में इमाद वसीम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। आपने शादाब खान को एडजस्ट करने के लिए एक मौका देने के लिए एक और मौका देने के लिए इमाद वसीम को बाहर बिठाया, जिसका किसी भी तरह बाहर बिठाना बनता नहीं था। उस शख्स को आप हर 2 में से 1 मैचेस दे रहे हैं और वो आपको हर 2 में से 1 मैचेस में परफॉर्म करके दिखा रहा है, और परफॉर्मेंस भी ऐसी है जो टीम के लिए इम्पैक्टफुल है। वो ओवर्स भी ऐसे कराता है कि अगली टीम को परेशान कर देता है, फिर विकेट ले जाता है, और बैटिंग में भी उसको जो 10 से 5 गेंदें मिलती हैं उसमें वो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे खिलाड़ी को आपको चाहिए था भाई एक और मौका देते, वो और परफॉर्म करते हो, रिदम में आते और वर्ल्ड कप के लिए वो आपके एक मुस्तकिल हथियार होते, लेकिन नहीं, आपने जो है ना उनको बाहर बिठा दिया। तो ये आपने अपने साथ भी गलत किया और इमाद वसीम के साथ भी गलत किया। और आखिरी बात कि आपका वर्ल्ड कप का सीजन से शुरू होने वाला है, आपको चाहिए था कि आप ऐसी सीरीज रखते जिसमें आपको अपनी बैटिंग बॉलिंग टीम कॉम्बिनेशन कमजोरी का पता चलता। आपने आयरलैंड के साथ सीरीज रख दी और लपी तुली बैटिंग करके पहला मैच हार गए। तो आप जब अगले 2 मैचेस जीते तो आपको लगा और हमें भी लगा आपने तीर मार लिया है, कोई आसमान गिरा दिया है और आप वर्ल्ड क्लास टीम बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो एक कमजोर साइड थी और आपको वर्ल्ड कप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे बड़े बड़े साइड से मुकाबला करना है। तो जब आप इंग्लैंड आए तो आप परेशान हो गए, पहले मैच में आपको बुरी तरह हार पड़ी, दूसरे मैच में। और सबसे बड़ा अफसोस की बात आईसीसी के लिए है कि आप आजकल के दौर में आप किसी टीम का जब मैच वॉश आउट कराते हैं तो उसमें आप बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बहुत से खिलाड़ी जिनको मौका मिल रहा होता है आप उनसे छीन लेते हैं। तो इस पे आईसीसी को सोचना चाहिए, कम से कम क्या ऐसा कानून लाएं कि 10 से 12 से 15 ओवर का कोई मैच हो, लेकिन मैच वॉश आउट नहीं होना चाहिए, उसका एक रिजर्व डे होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी फंक्शन भी थी तो आपकी मैनेजमेंट और आपका पीसीबी क्या कर रहा है, क्या वो इन चीजों को नहीं देख सकता? आजकल के माहौल में तो वेदर के भी पता होता है, बेनियों का भी पता होता है, सारी चीजें आपके सामने होती है। आपको पता था भाई हमने वर्ल्ड कप खेलना है, हमें उसके लिए तैयारी चाहिए, टीम कॉम्बिनेशन को जज करना है, तो फिर आपको इन चीजों पर गौर करना चाहिए था। आपके ये 2 मैचेस जो वॉश आउट हुए ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये अगर आपको मिल जाते मैं समझता हूँ भाई आप बेहतर से बेहतर कर सकते थे। आप 2 हार गए होते तो उस 2 में भी आपको कोई अच्छा सेटअप मिल जाता, आपके जो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हैं ये फॉर्म में आ जाते और आप एक तैयारी के साथ एक अच्छे माइंड के साथ वर्ल्ड कप में जाते। अब आप वर्ल्ड कप के साथ कैसे जाएंगे? कौन सा खिलाड़ी है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? कौन सा आपका कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए बेहतर है? और आप कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे जिसके साथ आप जीत के आए? ये सारी परेशान कौन बातें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारा पीसीबी और आईसीसी और हमारी टीम मैनेजमेंट इन बातों के बारे में सोचेगी। नाज़रीन मोहतरम, ये पाकिस्तान की टीम है, इस तरह के मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन हमें फिर भी ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप लेके आएंगे। और फिर भी जो टीम सेलेक्ट हो चुकी है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। परेशानी और नकाइस निकालना और दिखाना और बताना ये तो हमारा काम है, ऐसा चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह अब पाकिस्तान टीम के लिए आप दुआएं कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे।